اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں سکیمز کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی حکومت اراکین صوبائی اسمبلی پر مہربان، فیصل آباد کو ترقیاتی کام کے لیے مزید 4 ارب روپے ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے 4 MNAs کے لیے 1 ارب روپے کے فنڈز منظور کر لیے گئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں پی ٹی آئی حکومت اراکین صوبائی اسمبلی پر مہربان ہو گئی، فیصل آباد کو ترقیاتی کام کے لیے مزید 4 ارب روپے ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے 4 MPAs کے لیے 1 ارب روپے کے فنڈز منظور کر لیے گئے۔ مزید جان لیتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان بتائیے گا۔ اسکیموں کے حوالے سے تو اچھی خبر یہ ہے کہ ابھی یہاں پر پنجاب حکومت کی جانب سے فیصل آباد کے لیے فنڈز کی بہتات کر دی گئی ہے، اور یہاں پر فیصل آباد کے شہر میں اسپیشلی جو 4 حلقے پی وائز جہاں پر ابھی صوبائی وزیر خیال احمد قاصر نے حلف بھی لیا ہے، اس کے علاوہ میاں وارث عزیز MPA جو کہ FDA کے چیئرمین بھی بنائے گئے ہیں، ان کو جو 1 ارب روپے کا فنڈ اب منظور کر دیا گیا۔ اسی طرح سے لطیف نظر اور شکیل شاد کو بھی صوبائی کھاتے سے جو وزیر اعلیٰ ڈائریکٹر پہ 1 ارب روپے کے فنڈز جو ہے وہ منظور کر دیے گئے، جس میں یہ اسکیمیں دیں گے۔ اور ابھی جو یہاں پر PP 113 کے لیے فنڈز آ گئے ہیں، باقی بھی فنڈز جو ہے وہ منظور ہو چکے ہیں، اور کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ فنڈز لگنے شروع ہو جائیں گے۔ واضح رہے کہ یہاں پر ضمنی انتخابات کے پیش نظر فیصل آباد میں جب MPAs جا کر وزیر اعلیٰ سے ملے تھے، شہری حلقوں کے مسائل بتائے تھے، جس میں سیوریج کے مسائل بہت زیادہ ہے، جس میں جو واٹر سپلائی اسکیموں کے مسائل، سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کے مسائل ہیں PCC کے، تو یہاں پر وزیر اعلیٰ کی جانب سے منظوری دے دی گئی ہے، اور اب 1 ارب روپے کے فنڈز اگلے کچھ مہینوں میں فیصل آباد میں لگیں گے۔ تو توقع کی جا رہی ہے کہ یہاں پر جو اسی دسمبر کے مہینے میں تمام منصوبوں کی ٹینڈرنگ شروع ہو جائے گی۔ مارچ تک، اپریل تک یہ تمام منصوبے جو ہے وہ 4 MPAs کو 1 ارب روپے ملیں گے۔ عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آبادیوں کے لیے بری خبر، سوئی گیس پائپ لائنوں کے مرمتی کام کے باعث آئندہ 3 سے 4 روز تک سوئی گیس بند رہے گی۔ خیابان کالونی، مدینہ ٹاؤن، مرزی پورہ اور حسنین آباد میں گھریلو صارفین کو گیس پریشر میں کمی اور بندش کا سامنا رہے گا۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر بتائیے گا۔ جی SNGPL حکام کے مطابق فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں آئندہ 3 سے 4 روز تک مرمتی کام کے باعث گیس پریشر لو یا مکمل طور پر گیس کی بندش کا سامنا رہے گا، جس میں مدینہ ٹاؤن اور اس کے علاقہ خیابان کالونی، ظفر اسٹریٹ اور ملحقہ علاقوں میں گیس کا پریشر جو ہے وہ آئندہ 3 دن تک لو رہے گا، جس کے لیے SNGPL کی جانب سے صارفین کو ہدایات جاری کی گئی ہے کہ وہ متبادل انتظامات کر لیں، کہ وہاں پر گیس لیکیج کی شکایات کے باعث وہاں پہ کام کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح مرزی پورہ اور حسنین آباد کے جو علاقے ہیں وہاں پہ آئندہ 4 روز تک گیس کی کمی رہے گی، صارفین کو یا تو بالکل لو پریشر ملے گا یا پھر مکمل طور پر گیس کی بندش رہے گی۔ SNGPL حکام کے مطابق گیس پائپ لائنوں پر مرمتی کام کے باعث ان علاقوں میں گیس کی بندش یا لو پریشر کی شکایات رہیں گی، تاہم آئندہ 4 روز کے بعد ان علاقوں میں گیس کا پریشر مکمل طور پر دوبارہ بحال کر دیا جائے گا۔ جی مرمتی کام کے باعث 3 سے 4 روز گیس بند رہے گی۔ عمیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ خبر شامل کر لیتے ہیں سیلز ٹیکس کے حوالے سے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو بھٹا مالکان سے سیلز ٹیکس نکالنے میں ناکام رہے۔ 200 بھٹا مالکان کو سیلز ٹیکس اور جرمانے کے نوٹسز بھجوائے گئے، مگر کسی نے ٹیکس ادا نہ کیا۔ FBR افسران نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے بھٹوں کی ماہانہ فکس سیلز ٹیکس کیٹیگری میں کمپلسری رجسٹریشن کی تھی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر بتائیے گا۔ جی فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اینٹوں کے بھٹوں کو فکس سیلز ٹیکس کیٹیگری میں رجسٹرڈ کیا تھا، اور اس حوالے سے ان کی رجسٹریشن بھی کمپلسری کی گئی، مگر FBR حکام ان اینٹوں کے بھٹوں کے مالکان سے سیلز ٹیکس وصولی نہ کر سکے۔ اس حوالے سے فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر کی جانب سے قریباً 200 سے زائد بھٹا مالکان کو سیلز ٹیکس ادائیگیوں کے نوٹسز بھجوائے گئے، جس پر ان کی جانب سے ادائیگیاں نہیں کی گئیں، اور اس کے بعد پھر ان کو جرمانوں کے نوٹسز بھی بھجوائے گئے، مگر ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ بھٹا مالکان کی جانب سے نہ ہی فکس سیلز ٹیکس جمع کروایا گیا، جو کہ ماہانہ 10 اور 12,000 روپے فی بھٹا FBR کی جانب سے لگایا گیا ہے، اور نہ ہی ان کی جانب سے جو پینلٹی امپوز کی گئی تھی، نہ ہی FBR حکام ان سے وہ ریکوری کر سکے ہیں۔ تاہم اس حوالے سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو حکام کا کہنا ہے کہ اثر نو نوٹسز جو ہے وہ بھٹا مالکان کو بھجوائے جا رہے ہیں، اور جو افراد ان نوٹسز کی تعمیل نہیں کریں گے تو پھر FBR کے قوانین کے مطابق کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔
जर्मनी में होने वाली सबसे बड़ी हेम टेक्सटाइल एक्सपो के लिए पाकिस्तान एक्सपोर्टर्स का जाना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान में कायम जर्मन एम्बेसी में मुलाकात के लिए वक्त लेना खिलाफ पता करने के मुतरादिफ हो गया। एजेंट्स 30,000 रुपए तक रिश्वत ले रहे हैं। एक्सपोर्टर्स ने वजारत कॉमर्स, खारजा और जर्मन सफीर से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, ये क्या माजरा है? जी बिल्कुल, दुनिया टेक्सटाइल की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट हेम टेक्सटाइल जो कि जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में होती है, उसके वीज़े एक बड़ा मुअम्मा बन गए हैं। पाकिस्तान के अंदर कायम इस्लामाबाद में जर्मन एम्बेसी जो है उसके ऑनलाइन वीज़े आते हैं, लेकिन वो पहले से बुक निकलते हैं। एजेंट्स 20 से 30,000 फीकस वीज़ा जो है अपॉइंटमेंट जो है वो बेचने लगे, जिस पे एक्सपोर्टर्स परेशान हैं। क्योंकि पाकिस्तान के बड़े तादाद में एक्सपोर्टर्स हेम टेक्सटाइल में शिरकत करते हैं और वहाँ से बड़े तादाद में पाकिस्तान के लिए ऑर्डर्स लेके आते हैं। जर्मनी पाकिस्तान के टॉप 5 कंट्रीज़ में बरामदी ममालिक में शामिल, जिसको पाकिस्तान बरामदत करता है। हमारे साथ खालिद नदीम साहब मौजूद हैं जो कि फ्रैंकफर्ट में हिस्सा भी लेते हैं और अबूमा के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। खालिद साहब, क्या मुश्किलात आ रही हैं? ये तो फिर बड़ा मसला बन जाएगा। क्या इसके ऊपर आप समझते हैं होना चाहिए? क्योंकि हेम टेक्सटाइल अगले महीने है, तो अभी वीज़े ना मिले तो ना अपॉइंटमेंट्स मिल सकी तो बड़ा मसला बन जाएगा। जी बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। ये टेक्सटाइल का सबसे बड़ा इवेंट होता है जो साल में एक दफ़ा होता है। हमारी जो एक्सपोर्टर्स हैं होम टेक्सटाइल की, इनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं इसको अटेंड करने। हर किसी की कोशिश होती है इसको अटेंड करें। अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसा से ये जो जर्मन एम्बेसी में अपॉइंटमेंट ऑनलाइन लेनी पड़ती है, उसमें कुछ शायद एजेंट इन्वॉल्व हो गए हैं जो कि अब उसको अपॉइंटमेंट को होल्ड कर लेते हैं। आपको ऑनलाइन जाके मिलती नहीं है। इनको पैसे दें, पर कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 25,000, इस तरह करके वो पैसे लेते हैं, फिर आपकी अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुकिंग करवा लेते हैं। आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएं, आपको नहीं मिलती। दूसरा, इसमें बहुत ज़्यादा हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इसको देखें, और जर्मन एम्बेसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो माफियाज शामिल हो रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जो एक्चुअल लोग हैं वो रह जाते हैं और जो 2 नंबर बंदे हैं वो इसमें अपना बेनिफिट ले जाते हैं। इसको देखें और इसको ओपन करें। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हैं, उनके लिए बहुत बड़ा इवेंट है और इसमें डिले की वजह से या उनको अपॉइंटमेंट ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा लोग इससे में पीछे रह जाएंगे या वो इवेंट अटेंड नहीं कर सकेंगे, इवेंट अटेंड नहीं कर पाएंगे। और हेम टेक्सटाइल एक्सपो के लिए पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स का जाना मुश्किल हो गया। बिलाल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इंपोर्ट बंद होने के असरात आईटी शोबे पर भी असरअंदाज होने लगे। कंप्यूटर प्लाजा रेक सिटी के ताजर कहते हैं आईटी मसनूआत का बैन होना नौजवान नस्ल की तरक्की को रोक देने के मुतरादिफ है। मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज। आईटी से रिलेटेड मसनूआत भी, जिस तरीके से हमने बात की पोल्ट्री के हवाले से, टेक्सटाइल मशीनरी के हवाले से, और अब आईटी तक भी इसके असरात पहुंचने लगे हैं। और आईटी से रिलेटेड मसनूआत जो कि इंपोर्ट हो रही थी बंदरगाहों पर, उस कंटेनर्स की शक्ल में जो है वो पड़ी हैं और बहाल नहीं हो रही, जिसकी वजह से ताजरों को शदीद परेशानी का सामना भी है। और इसके साथ साथ अगर आईटी इंपोर्ट ब्लॉक हो जाती है या बैन हो जाती है तो मुल्क जो है वो किस हद तक उसको नुकसान होगा, खासतौर पर हमारी नौजवान नस्ल को। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स नजरी डॉक्टर सज्जाद अरशद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, क्या कहते हैं कि आईटी से रिलेटेड अगर हमारी मसनूआत रुक जाती हैं, हम तो डिपेंडेंट हैं इन टेक्नोलॉजीज के अंदर बाकी मुल्कों के ऊपर, क्या कहेंगे हमारी यूथ किस तरह से आगे तरक्की करेगी? बहुत शुक्रिया। ये अपना बड़ा बर्निंग इशू है इस वक्त जो चल रहा है जी, क्योंकि जो हमारे कंटेनर्स वहाँ पे सिर्फ रुके नहीं हैं, उन कंटेनरों के रुकने से जो डैमेज पड़ रहा है वो अलहदा। पहले ही हम लोग बच्चों के लिए हमारे 65% यूथ है, जिस मुल्क में इतनी यूथ है और वो सारी जो है वो इसके साथ अटैच है, कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ और सब इस सिस्टम के साथ। अगर वो चीज़ें उन्हें नहीं मिलेंगी, हम तो पहले लैग कर रहे हैं और हम मज़ीद पीछे को जाते जाएंगे और मुल्क जो है मईशत भी बैठती जाएगी और मज़ीद नुकसान होगा। हमारी हुकूमत से इस्तदा है कि फौरी तौर पे ये जितने भी कंटेनर्स रुके हुए हैं उनको रिलीज़ किया जाए, और ताकि लोगों को जो बच्चों की हमारी तालीम का हर्ज ना हो, क्योंकि अब तो सारी एजुकेशन ही कंप्यूटर पे है। अगर वो कंप्यूटर नहीं होंगे तो एजुकेशन सारी सफ़र होगी, ना सिर्फ एजुकेशन होगी, उसकी सारी रिलेशनिंग जो इंटरनेशनल डीलिंग हर चीज़ मुतासर होगी और हम बहुत तेज़ी से पीछे को जाएंगे। तेज़ी से पीछे को जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर जो आईटी लैब्स बनी होती हैं, वहाँ पर कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं और इस वक्त बहुत शुक्रिया शराज तफसीलात से आगाह करने के लिए।
कभी पानी का मसला, कभी खाद का मसला, यूं ही चलता रहा तो ज़राअत मुतासर होगी। समुद्री में किसानों की यूरिया खाद की कमी और ब्लैक में फरोख्त का इल्जाम। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं वकास जमील से। जी वकास, बताइएगा। समुद्री में गंदम की काश्त जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और खेतों में जो है अब गंदम के जो है पौधे नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब जो है वो किसानों को मुश्किलात का ये सामना करना पड़ रहा है कि उनको यूरिया खाद जो है वो फ्राहम नहीं की जा रही या फिर ब्लैक में मिल रही है, जिसकी वजह से गंदम की पैदावार मुतासर होने का खदशा है। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। क्या मुश्किलात इस हवाले से पेश आ रही हो, क्या असरात मुरतब होंगे? ਦੇਖੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕੋਰ ਵਗੈਰਾ ਭੰਨਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲ 4 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 2250 ਰੇਟ ਹੈ, 2700 ਰੁਪਇਆ ਬਲੈਕ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡੀਏਪੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਔਰ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਕੇ। अच्छा, अगर खाद इस्तेमाल नहीं की जाए तो कितनी पैदावार मुतासर हो सकती है इस वक्त? अगर खाद नहीं मिलती सानू तो काफ़ी यानी कि 50% पैदावार रह जाएगी, क्योंकि अगे DAP असी यूज़ कर लीए थले सस्ती होने दे वजह दे नाल। मियाँ साहब ने को 2500 रुपया रिलीफ दिता, को स्टाकियां ने को 2000 रुपया अपनी तरफों रिलीफ हो गया, क्योंकि उन्होंने 8-9 महीने ब्लैक पे रही सी। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आज एंटी करप्शन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। फैसलाबाद में एंटी करप्शन सेमिनार जारी है। स्पेशल जज एंटी करप्शन मोहम्मद असलम भट्टी, कमिश्नर शाहिद न्याज, डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख, डायरेक्टर एंटी करप्शन अयूब खान बलोच समेत दीगर शरीक हुए। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हमारे माँ बाप, हमारे टीचर्स, हमारी बहनें, हर तबके के उन्होंने शमूलियत शामिल की। लेकिन जैसे मेरे छोटे भाई डिप्टी कमिश्नर साहब ने फरमाया कि आज हम यहां इकट्ठे हुए, बातें सुनी, तकरीरें सुनी, वीडियो बनाई, मोबाइल पे खेले, वापस चले गए, तो मेरा ख्याल है कि इस सारी प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं। देखें, कमिश्नर हमारे डायरेक्टर एंटी करप्शन साहब ने जो हमारा प्रोसीजर है वो इन डिटेल बता दिया। डायरेक्टर एंटी करप्शन बड़े काम करने वाले बंदे, उनकी टीम, उनके लिए खुशनसीबी के बहुत अच्छे अंदाज में काम करने वाले बंदे। टारगेट एक ही कि मजलूम की हक रसी की जाए। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे काम शुरू किए हैं। अगर मैं भी वही प्रोसीजर बताना शुरू कर दूं तो मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ी डिटेल से बता दिया, कुछ बताने वाली बात नहीं रहेगी। इस भाई का एक क्वेश्चन था, उसको मैं लास्ट पे थोड़ा सा उसे एलेबोरेट करूंगा। लेकिन मैं ये जनरल अंदाज में बात करना चाहता हूं कि हम क्यों इकट्ठे हुए। सोचने वाली बात यह है, क्यों इकट्ठे हुए? व्हाट इज एंटी करप्शन, व्हाट इज करप्शन? ये काम सिर्फ डायरेक्टर एंटी करप्शन या असलम भट्टी का है या कमिश्नर साहब का है या डिप्टी कमिश्नर का है? क्या करप्शन यही है कि हम कोई गवर्नमेंट का काम करने के लिए, कोई अपना अनड्यू फेवर लेने के लिए कोई अनड्यू बेनिफिट दे दें तो ये करप्शन होगी? करप्शन हर तबके में, हर लम्हे में, जैसे डिप्टी कमिश्नर साहब ने फरमाया, इवन अगर ग्वाला वो अपने दूध में पानी डाल रहा है तो वो भी करप्शन कर रहा है, उसमें चाहे कुछ भी लेना देना नहीं है शामिल। दैट इज ऑल्सो करप्शन। अब आप ये देखें, कि हम कौन हैं और कहां हम स्टैंड करते हैं। एंटी करप्शन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। फैसलाबाद में एंटी करप्शन सेमिनार जारी है। स्पेशल जज एंटी करप्शन मोहम्मद असलम भट्टी, कमिश्नर शाहिद न्याज, डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख, डायरेक्टर एंटी करप्शन अयूब खान बलोच समेत दीगर शरीक हुए। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हमारा दीन हमें सिखाता है कि उसके बुनियादी असूलों के मुताबिक हमने ज़िंदगी का हर लम्हा गुजारना है। हमने वादा इफ़ा करना है, वादा इफ़ा नहीं करेंगे तो ये भी करप्शन है। हमने झूठ नहीं बोलना, हमने कम नहीं तोलना,
जो माशरती बुराइयाँ आपको स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, ये सारी की सारी करप्शन के ज़ुमरे में आती हैं। ये मेरा बहसीयत एक वालद के, हमारे असातिज़ा कराम का, हमारी बहनों का, बहसीयत उस्ताद के और मेंबर पे बैठे हुए उलमा कराम का, जिनकी नुमाइंदगी भी यहाँ पे मौजूद है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने माशरे को बताएं कि जिन असूलों की पासदारी करके हम मुसलमानों ने दुनिया के ऊपर नंबर 1 कौम होने का शर्फ हासिल किया, आज उन्हीं के असूलों को, जिनको हम गैर मुस्लिम दुनिया कहते हैं, वो अपना के हमसे कोसों आगे हैं। हम उनकी, जिस तरह डी साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हम उनकी धूल को भी नहीं पहुँचते, तो एक तो ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत, और दूसरा मैं गुजारिश करूंगा और बाब इख्तियार से जो हमारे दोस्त हैं और मैं भी, कि हम चीज़ों को सहल बनाएं। जो काम मुश्किल से होने वाले हैं उनके आसान रास्ते तलाश किए जाएं, ताकि मुश्किल में कोई पड़ेगा तो किसी को ज़रूरत महसूस होगी कि वो गलत तरीके से उस काम को करवाए, या अगर किसी की पकड़ नहीं होगी तो उसको हौसला होगा कि मैं फिर दोबारा गलत काम करूं। और ये वो असूल है जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की सूरत के अंदर दिया, कि मुआशरे के अंदर जिस तरह जैसा हमने फरमाया कि हम गलत काम करने वाले हाथ को रोकने का हौसला रखते हों, जिसको कहा गया कि सबसे बेहतर जिहाद है कि कुव्वत से रोका जाए, उससे कमतर दर्जे का है कि ज़ुबान से रोका जाए, या कम अज़ कम कमतर तरीन जो दर्जा है कि दिल के अंदर उसको बुरा जाना जाए, बुरा जाना भी जाए और दूसरों को बताया भी जाए कि ये गलत काम हो रहा है, और जो अच्छा काम है उसकी तारीफ़ की जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाए। और इस मुकाम के ऊपर जो मेरे सहाफ़ी दोस्त जहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, ये उनका रोल है कि मुआशरे के अंदर होने वाली बदसूरतियों को ज़रूर अयां करें, टीवी के ऊपर, अखबारों के अंदर बताएं, मगर हर वक्त हमें मत ये बताएं कि यहाँ पे सब ही बुरा है। जो अच्छी बातें हो रही हैं मुआशरे के अंदर, यकीनन हो रही हैं, तभी हम सर्वाइव कर रहे हैं, उनको बताने के लिए इसलिए ज़रूरत है कि हमारा अपने ऊपर एतबार कायम हो कि हम अच्छे काम करने के अहल हैं और अच्छाई भी यहाँ पे मौजूद है। बुराई का हर वक्त चर्चा करने का नुकसान ये होता है कि हमारा तहत शऊर, हमारा सब कॉन्शियस ये जान लेता है कि यहाँ पे सब कुछ ही बुरा है, और सब कुछ बुरा है तो अगर मैं भी बुरा करूँगा तो ये कोई बुराई नहीं है। तो मेरे सहाफ़ी दोस्त और मेरे असातिज़ा कराम, मेरे बहन और भाई, हमारा ये अव्वलीन फरीज़ा है कि हम अच्छाई और बुराई की तमीज़ के साथ साथ लोगों को अच्छी मिसालों से भी रोशनास करवाएं, मीडिया भी बताए और असातिज़ा कराम भी बताएं। जिस तरह उसे बेटी ने टॉप किया और डीसी साहब ने उसको एक दिन का डीसी बनाया, वो मेरे पास भी इज़्ज़त मेरी अफजाई हुई कि मेरे पास भी वो बेटी तशरीफ़ लाई, तो उसकी वजह से हमारे कितने बच्चे हैं जिनके अंदर ये लगन पैदा हुई और उमंग जागी कि वो भी ये काम करें। तो ये एक बच्ची के अच्छे रोल से इतनी बड़ी तब्दीली आ सकती है। मेरा आज का पैगाम तो यही है कि जहाँ पे कोई गलत काम करता है, गड़बड़ करता है, उसको कुव्वत से रोकें जो आपको हासिल है, और जहाँ पे कोई अच्छा काम करता है तो उससे लोगों को बताएं, ताकि कौम बहसीयत मुआशरा हम अपने आप को बेहतर समझना शुरू करें और बुराई के खिलाफ खड़े हो सकें। मैं बारे दीगर मैं मशकूर हूँ डॉक्टर साहब एंटी करप्शन का, कि उन्होंने अपनी कौम के मुस्तकबिल से हमें मिलने का मौका दिया और हम इस काबिल हुए कि हम सब लोग अपना पैगाम आप तक पहुँचा सकें। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी हॉस्पिटल में सफाई कंपनियों को रकम की अदायगी न की जा सकी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चिन्योट में भी सफाई अमला ने काम छोड़ दिया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वकार घुम्मन से। जी वकार, मुलाजिमीन के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आगाह कीजिएगा। काम करने वाले सेंट्री वर्कर्स को गुज़श्ता 3 माह से तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से इन तमाम सेंट्री वर्कर्स ने जो फिलहाल काम छोड़ दिया है। अस्पताल की इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस तरह मामला चलाए जा रहे हैं और इन लोगों का क्या कहना है, इनसे बात करते हैं। कुछ सेंट्री वर्कर्स हमारे साथ मौजूद हैं। क्यों नहीं तनख्वाह दे रहे आपको? सर सानू गवर्नमेंट 3 महीने तो तनख्वाह नहीं दे रही, ते साडे मालका ने क्या है
वही तो उसी ने फिर काम छोड़ दें। और इधर अस्पताल में बहुत गंदगी फैली हुई है, और हमारा क्रिसमस भी आ रहा है, और को हुकूमत से सारी गुजारिश है भाई हमें तनख्वाह दें, तो आगे साढ़े मालिक हमें दें। कितनी देर तो तनख्वाह नहीं दे रहे? तीसरा माह की कहते हैं? कहते करना है तो कर लो, नहीं करना तो छोड़ दो, सैलरी अभी हमारे पास नहीं है। हुकूमत ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कि इंतजामिया ने हायर की हुई है। इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट उन कंपनी को पैसे नहीं दे रही और कंपनी इनको पैसे नहीं दे रही, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान है। क्रिसमस भी आ रहा है, इसमें बेशतर जो अहले मसीह लोग हैं वो मौजूद हैं और इनका ये कहना है कि क्रिसमस सर पे है लेकिन इनको तनख्वाही अदा नहीं की जा रही। दूसरी जानिब इंतजामिया ने प्राइवेट तौर पे कुछ बंदे रख के यहाँ पर काम चलाना शुरू कर दिया है, लेकिन इन लोगों को अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। माले मुफ्त दिले बेरहम, महकमा सेहत फैसलाबाद का मरकजी दफ्तर सिक्योरिटी से महरूम। लाखों रुपए मालियत की 200 से ज्यादा मोटरसाइकिल, वैन और जीप से पुर्जे चोरी हो गए। मोटरसाइकिल से स्पेयर पार्ट्स चोरी करने की फुटेज सिटी 41 को मौसूल हो गई। तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ महकमा सेहत के मरकजी दफ्तर में, और आप मेरे कम में देख सकते हैं कि यहाँ पे बेशुमार बाइक्स जो कि हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेटर्स को फराहम की गई थी ताकि वो घर घर जाकर पोलियो मुहिम जो है उसे कामयाब बना सकें, बच्चों को मुख्तलिफ जो मौजी अमराज हैं उनसे बचाव की हिफाजती वैक्सीन लगा सकें। और तकरीबन 2007-8 में ये जो थे मोटरसाइकिल महकमा सेहत के जो वैक्सीनेटर्स हैं इन्हें फराहम किए गए थे और बाद इन्हें जो था कंडम करार दे दिया गया था। तकरीबन 230 या 35 मोटरसाइकिल्स की यह तादाद है जो कि इस वक्त महकमा सेहत के दफ्तर में मौजूद हैं, और ताहाल इनकी नीलामी ना होने के सबब और कोई बेहतर सिक्योरिटी ना होने के सबब जो चोर हैं वो आप फुटेज में देख सकते हैं कि वो यहाँ से स्पेयर पार्ट्स जो है वो मोटरसाइकिल्स के जो है वो खोले जा रहे हैं। और यही वजह है कि अगर आप मोटरसाइकिल देखेंगे तो अक्सर मोटरसाइकिल के या तो यहाँ से इंजन निकाल लिए गए हैं, टायर निकाल लिए गए हैं, सीट्स वगैरह जो है वो निकाल ली गई हैं, टैंकियाँ जो है मोटरसाइकिल्स की वो गायब हैं। इसके साथ साथ अगर मेरा कैमरामैन कमर भुट्टो आपको मेरे राइट साइड पे दिखाए तो यहाँ पे भी आपको लाखों रुपए मालियत की जो वैन्स हैं वो यहाँ पे खड़ी हुई नज़र आएंगी, जो कि नेशनल प्रोग्राम हेल्थ के तहत जो थी वो फराहम की गई थी। और महकमा सेहत जो इंतजामिया उनका ये कहना है कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी की ये वैन्स हैं और उनकी जानिब से जो था ये महकमा सेहत के दफ्तर में जो है वो खड़ी कर दी गई है। और इस वक्त एक बड़ी तादाद जो है वो ये सिर्फ एक ऐसा ख़ास हिस्सा है जहाँ पे तकरीबन 15 के करीब जो है वो वैन्स खड़ी हैं। हालांकि इसके अलावा अगर आपको मैं दूसरे हिस्से पे लेके जाऊँ तो वहाँ पे वैन्स की जो तादाद है वो अलग है। इसके अलावा जीप्स वगैरह जो थी वो भी यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं और उनके भी जो है वो स्पेयर पार्ट्स। अज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में वकला की हड़ताल का 7वां रोज, अदालती अमूर मुतासर होने लगे। हड़ताल के बायस दवामी के केसेस भी मुतासर होने लगे। मजीद जान लेते हैं हाशिर वड़ाइश से। जी हाशिर, बताइएगा। पंजाब बार कौंसिल की अपील पर आज वकला की हड़ताल का 7वां दिन है। इस हवाले से हड़ताल के भाई जो है मुख्तलिफ अदालती अमूर जो है वो काम नहीं कर रहे, जिसके बाद जो साइलिन है इसके साथ साथ वकला जो है उनको भी शदीद परेशानी का सामना। इसमें खास तौर पर अगर बात करें अदालत के अंदर इकरारनामे के जितने भी केसेज इस वक्त अदालत के अंदर जेर समाज थे वो तकरीबन जो है वो हड़ताल के बायस जो है उनमें से ज़्यादातर केसेज जो है वो इल्तवा का शिकार है। इसकी वजह से साइलिन को किस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हमारे साथ सीनियर जो वकील हैं तारिक गुज्जर साहब वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो सर बताइएगा, हड़ताल के बायस जो साइलिन स्पेशली जिस तरह इकरारनामे के केसेस हैं उनमें साइलिन को किस तरह मुश्किलात का सामना हो रहा है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इकरारनामा जब आते हैं तो उनके फिर केसेस किए जाते हैं, दावा तमील मख्तस का किया जाता है। वो दावा तमील मख्तस का जब डिग्री हो जाता है तो फिर उसकी रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। उसमें आज भी कितने केसेस जो डिग्री हुए हैं उनकी अब रजिस्ट्रियाँ होनी थी, वो डिग्री जारी होनी थी, डिग्री पर्त जारी होना था, वो सारे हड़ताल की वजह से सारे काम रुक गए। अब वो साइलिन भी परेशान है और उसमें जो डायरेक्ट मुतासिन जो लेने वाले जगह वो भी परेशान है, जो देने वाले वो भी परेशान है। वो इससे ना सिर्फ कौमी सतह पर मुल्क को नुकसान हो रहा है बल्कि आवाम को भी नुकसान हो रहा है। और मेरी अहकाम बाला से अपील है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील है और तमाम हेड ऑफ द स्टेट से अपील है
کہ یہ وکلا کی جو سٹرائک ہے اور جو عدلیہ کا آخر اپڈیٹ معطل کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب بات کر لیتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے۔ فیصل آباد میں سستے کپڑے بھی اب غریب عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگے۔ راجبا روڈ لنڈا بازار میں شہری آئے تو ضرور، لیکن ریٹ سن کر خریداروں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ لنڈا بیچنے والوں نے بھی بڑھتی مہنگائی کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہرا دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں اب سستے کپڑے بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگے۔ راجبا روڈ لنڈا بازار میں شہری آئے تو ضرور، لیکن ریٹ سن کر خریداروں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ لنڈا بیچنے والوں نے بھی بڑھتی مہنگائی کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہرا دیا۔ بڑھتی مہنگائی پر شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے، جان لیتے ہیں فصیح نقوی سے۔ جی فصیح، بتائیے گا۔ جی بالکل، برانڈز کے کپڑے ہو یا جو بڑی بڑی مارکیٹ کے کپڑے ہیں وہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، لہٰذا جو سستے لنڈے بازار تھے، سستے جمعے بازار یا اتوار بازار کی اگر بات کی جائے تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہاں سے جو ہے خریداری کرتا ہے، لیکن بڑھتی ہوئی جو لہر ہے، موجودہ لہر ہے ملک میں، اس کی وجہ سے اب جو لنڈے بازاروں کے کپڑوں کی بات کی جائے، جوتوں کی بات کی جائے یا اس کے ساتھ ساتھ جیکٹس جو یہاں پر سردیوں کا موسم ہے اس کی بات کی جائے، ان کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ شہری ہی موجودہ ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال سردیوں میں کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ریٹس ہیں؟ اس سال سردیوں میں کافی مہنگائی ہے، نئی چیز تو بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، مگر اس میں یہ ہے کہ چلے لنڈے بازار میں مگر یہاں پہ بھی ریٹ کافی آئی ہیں۔ پچھلے سال جو 100 روپے کی چیز تھی اس سال 250 تک کی ہو رہی ہے اور کافی مہنگائی ہے، افورڈ کرنا عام آدمی کے بس سے باہر ہے۔ لنڈا بھی افورڈ کرنا بہت مشکل ہے، افورڈ کرنا بہت مشکل ہے۔ اور بھی یہاں پر خریدار موجودہ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو بڑھتی مہنگائی ہے اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بڑھتی مہنگائی کا جو رجحان پیدا ہو گیا، ہم یہ سارا قصور ان حکمرانوں کا ہے۔ ابھی دیکھیں ڈالر کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے، ابھی ڈالر کنٹرول میں نہیں ہوا، جس وجہ سے پورٹ قاسم پر بے شمار کنٹینر پھنس گئے ہیں اور ملک میں ایک مہنگائی کا نیا طوفان آ رہا ہے۔ یہ غریب لوگ جو سیکنڈ ہینڈ کپڑے یوز کرتے تھے، اب یہ کپڑے بھی ان کی قوت خرید سے باہر جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں، سبزیوں کو، دالوں کا ریٹ اور لہسن، پیاز، ٹماٹر کا ریٹ بہت بڑھ رہا ہے ڈالر کی وجہ سے، اور جو معیشت کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، عوام کا جینا محال کیا ہوا، عوام کا سوچیں۔ سوچیں جی بالکل۔ یہاں پر جو دکاندار وہ موجود ہے، جی بتائیے گا کہ یہاں پر شہری آ تو رہے ہیں لیکن کتنے فیصد ہیں؟ لنڈا افورڈ کرنا بھی عوام کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں پچھلے سال کی وجہ سے اس سال جو ہے نا وہ کافی کم لوگ آ رہے ہیں، وہ کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، جہاں پہ 4 چیزیں جاتی تھی اب ایک چیز جا رہی ہے، یہ وجہ ہے۔ لنڈا افورڈ کرنا بھی عوام کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ فصیح اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں آپ کو بتائیں ٹوبر ٹیکسنگ میں انسداد ڈینگی SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا حکم دے دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ارشد بھدر نے محکموں کے افسران کو انسداد ڈینگی کے متعلق ہنگامی بنیادوں پر انڈور اور آؤٹ ڈور سرگرمیوں کو تیز کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ DC کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا جائزہ اجلاس ہوا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے اجلاس میں گزشتہ ہفتے کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے حکومتی گائیڈ لائنز کے مطابق ٹھوس اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ کہتے ہیں ڈینگی کا پھیلاؤ بننے والے افراد کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے گی۔ سروں کے سلطان استاد راحت فتح علی خان نے زندگی کی 48 بہاریں دیکھ لیں۔ موسیقاروں اور مداحوں کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات۔ راحت فتح علی خان نے 9 دسمبر 1974 کو فیصل آباد کے موسیقار گھرانے میں آنکھ کھولی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔